Good morning बच्चों. Today I am going to start the motion in one dimension. This is the class 9th chapter number 2. In this chapter we will discuss about the motion and the rest and how the body is moving, uniform motion, non-uniform motion, motion in one dimension. These topics are covered in this chapter, particular chapter. So first we discuss about the rest. रेस्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? रेस्ट का मतलब होता है अगर पोजीशन किसी बॉडी की टाइम के साथ साथ सराउंडिंग के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है तो बॉडी रेस्ट में कहलाती है. व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी not change with surrounding, then with the time, then body is called in rest. So there are, whenever the two bodies are moving in a same direction with the same velocity, then they are also called in rest. Whenever the two bodies are traveling, let us suppose the body A and body B are traveling with the same velocity in the same direction, they are also called in rest. So, and what is meaning of motion? When the position of the body change, with respect to the time, with respect to the immediate surrounding, then the body is called in motion. So motion means when position of body change with surrounding, then body is called in motion, So there are different types of motion. First we discuss uniform motion. In uniform motion the body covered equal distance in equal interval of time. When moving body covered equal distance in equal interval of time, then body is called in uniform motion. And non-uniform motion, body covered different distances in equal interval of time. Moving body covered different distance in equal interval of time. Then the body is called in non-uniform motion. In this chapter, what is meaning of the motion in one dimension? When body is traveling in one direction only, either in x-axis, along the x-axis, or in y-axis, so such kind of motion is called the motion in one dimension. It is also called the straight line motion and rectilinear motion. So in this kind of motion the moving body always traveling in only one direction. Such kind of motion is called motion in one dimension. When moving body
travel in one direction only, one direction only, either along the x-axis or y-axis, then this kind of motion is called the one dimension motion or rectilinear motion. Rectilinear motion. So there are the some terms are, what is meaning of distance? So distance का मतलब length covered by the body, length covered by the body is called the distance. अगर कोई बॉडी ए से बी जा रही है तो अब इसके लिए ये अगर ऐसे जा रही है तो ये लेंथ है, ये डिस्टेंस है, अगर ऐसे जा रही है तो ये लेंथ है, अगर पाथ नंबर 1 फॉलो किया तो लेंथ डिस्टेंस ये हो जाएगी, पाथ नंबर 2 फॉलो किया, पाथ नंबर 3 फॉलो किया, तो ये डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं ए से बी तक जाने के लिए. अब यहाँ देखो ये पाथ बड़ा है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर ये सबसे छोटा पाथ है, तो जो सबसे छोटा पाथ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने को तो ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहाँ ए से बी तक जाने में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है कि चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के डिफरेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है. तो डिस्टेंस में क्या होता है कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई तो ये जो लेंथ कवर्ड की ये डिस्टेंस होती है, और डिस्प्लेसमेंट में बॉडी एक जगह से दूसरी जगह गई पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसमें डायरेक्शन भी होता है. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और शॉर्टेस्ट पाथ जो है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा, या तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है कभी बड़ा नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, या तो वो छोटा होगा डिस्टेंस से और या बराबर होगा. अगर वन डायमेंशन मोशन हो रहा है तो जितना डिस्प्लेसमेंट है उतना ही डिस्टेंस है. अब बॉडी अगर उसकी पोजीशन में जैसे ए से बी गई एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चलती चली जा रही है कोई बॉडी, तो ये डिस्टेंस भी हुआ और यही डिस्प्लेसमेंट हुआ. अगर वन डायमेंशन मोशन है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और बॉडी रिटर्न भी नहीं हो रही है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है. वरना अगर ऐसे चल रही है कोई बॉडी तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा. तो अब डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होता है. अब देखो अगर हम देखें डिस्टेंस कैसे, स्पीड देखें तो जो कोई बॉडी डिस्टेंस कवर करती है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में उसको हम लोग स्पीड कहते हैं. स्पीड स्केलर होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो स्पीड का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द स्पीड. तो अब स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में देख रहे हैं, स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में देख रहे हैं. अब देखो बच्चों स्पीड क्या होता है, तो स्पीड जो होती है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, मतलब डिस्टेंस, और जैसे एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया और ये टाइम लगा, तो डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को हम लोग स्पीड कहते हैं. ठीक है, डिस्टेंस और डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन. अब क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो नहीं लगता. डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब एक छोटा सवाल है, जैसे 100 मीटर डिस्टेंस कवर की एक बॉडी ने, यहाँ से ए से बॉडी गई बी तक और उसने 100 मीटर डिस्टेंस 50 सेकेंड में कवर की. तो अब आपसे कहा जा रहा है स्पीड बताओ, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितनी कवर की और टाइम कितना लगा, तो यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू 100 दी है और टाइम की वैल्यू 50 दी है, तो सॉल्व कर लिया, 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है. अब ये स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है. जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती है तब फिर एवरेज स्पीड निकाली जाती है.
एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड की ज़रूरत हम लोग को कब पड़ती है कि जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो। जैसे अभी यहाँ से यहाँ गई, ए से बी गई, 10 मीटर दूरी तय की उसने 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 10 मीटर दूरी तय की, लेकिन अगला 10 मीटर कवर करने में उसको जो था, अगला 10 मीटर कवर करने में उसको 2 सेकेंड लगे। अब की भी 10 मीटर दूरी तय की, लेकिन अब की 2 सेकेंड लगे। फिर अगले 3 सेकेंड में, यानी उसने अगले सेकेंड में जो दूरी तय की वो जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाने में, 10 मीटर तक जाने में अब की उसको 4 सेकेंड लगे। ठीक है, तो अब देखो टोटल टाइम और एवरेज स्पीड इसकी जो है वो निकालने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि स्पीड बार बार बदल रही। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, 10, 20, 30 मीटर दूरी तय की, और टाइम इसको कितना लग गया, 1 और 2, 3 और 4, 7। ठीक है, 30 मीटर में उसको 7 सेकेंड लग गए। तो ये इसकी एवरेज स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड में। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, इसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड में निकल आई। तो इस तरह स्पीड और एवरेज स्पीड बता दिया। अब देखो वेलोसिटी, अगर हम लोग देखें वेलोसिटी क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called velocity, is called velocity। अब देखो बच्चों कि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जब हम लोग लिखेंगे तो इसके ऊपर एरो बनाएंगे। जब हमें वेलोसिटी निकालना होगा तो एवरेज निकालेंगे, और ये पहला डिस्प्लेसमेंट है x1 और बाद का डिस्प्लेसमेंट x2 है। तो x2 डिस्टेंस और x1 डिस्टेंस में जो टाइम का डिफरेंस है, इसी को हम लोग ये कहते हैं वेलोसिटी। तो चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। अब अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी जाए, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखी जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट पार्टिकुलर मोमेंट, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पार्टिकुलर मोमेंट। अगर ये निकालना है तो देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर बहुत छोटा टाइम लगा, तब जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया उसको टाइम से डिवाइड किया, तो इसको हम लोग dx बाई dt भी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब बहुत छोटा टाइम होता है, टाइम बहुत छोटा है, तो जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और टाइम का डिफरेंस होता है उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो अब हम लोगों को स्पीड पता चल गया, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल गया। अब देखो बच्चों एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, और वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो इसको रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन का मतलब जब वेलोसिटी घट रही हो टाइम के साथ साथ, और जब वेलोसिटी बढ़ रही हो तो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आगे के नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों हम तुम लोग को ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, इनका ग्राफिकल प्रूफ बताएंगे और कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो वो नेक्स्ट पार्ट में वो चीज़ डिस्कस करते हैं।